Hello children, my name is Abhinandan sir. I am from Wiser Academy and today we will be learning some new concepts of class 9 atoms and molecules. So without getting late, let's get started. The first topic that has to be covered in atoms and molecules, ये बहुत ही simple सा chapter है. लोग खामखा इसको बढ़ा चढ़ा के they make it very difficult, but trust me, atoms and molecules is one of the easiest chapter in chemistry. Now, how did this concept come into existence? पहले के ज़माने में क्या होता था, लोगों को ये नहीं पता था कि एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं. तो इन द इंट्रोडक्शन पार्ट यू कैन सी कि यहाँ पर कुछ Indian philosophers around 500 BC, okay, and this was the Kannad Maharshi postulated that if we go on dividing matter, we shall get smaller and smaller particles. Ultimately, a stage will come when we shall across the smallest particle which is not at all divisible, and that particle was known as परमाणु. परमाणु का मतलब होता है जो मॉलिक्यूल्स या एटम जिससे हम बने हैं, जिससे दुनिया की सारी चीज़ें बनी हुई हैं. Now coming to some Greek philosophers, you can see Democritus, Leucippus suggested that if we go on dividing matter, a stage will come when particles obtained cannot be divided further. तो ये जो concept था that you will keep on dividing and dividing and dividing and in the end there will be no division possible. So that case it was considered as the atomic stage of matter. ठीक है. In the previous chapters we have discussed many topics regarding what are the different types of matter. Is it pure, impure? Is it a element or is it a compound or is it a mixture? ये सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं. So let us come to the atomic level of matter. There are the different laws which are governing about the structure of atoms and molecules inside a matter. So let us go to the law of chemical combination. Now you can see there are different activities here, and this law of conservation, the law of chemical combination, it was established, you can note it down, it was established by Lavoisier and Joseph L. Proust. ठीक है. The conservation of mass is nothing but the mass which is neither created nor destroyed. मैटर के केस में हम बोलते हैं that matter can neither be created nor destroyed. तो वही है conservation of mass, that if I have a certain gram of sodium and I have a certain gram of chlorine, and when I mix that, I will be able to find that the certain amount of sodium chloride is formed without wastage of anything. So that is known as conservation of mass. We will go to that eventually. Law of constant proportion. Law of constant proportion क्या होता है कि एक compound जो है उसका जो proportion है, suppose if I talk about water का composition क्या है, what is the formula of water? H2O, right? And let us see what is the formula of hydrogen peroxide, that is H2O2. Now you will see that there is not much of a difference between the chemical, you can say the formula of water and hydrogen peroxide looks quite similar. लेकिन कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ क्या बोलता है कि अगर हमको वाटर चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ 2 एटम of hydrogen and 1 atom of oxygen can make water. But in case of hydrogen peroxide, you will see there are 2 atoms of hydrogen and 2 atoms of oxygen. So let me tell you a good explanation of the different laws of conservation, combination and constant proportion. So let us move to the notes section. Let us write down a few points, then we will come back to the NCERT section.
नाउ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में देयर आर 3 पॉइंट्स दैट हैज टू बी डिस्कस्ड. पहला पॉइंट क्या है? व्हाट इज एटम? पहला पॉइंट, व्हाट एग्जैक्टली इज एटम? सेकेंड पॉइंट, एटॉमिसिटी of molecules. Third point is mole concept. These are all the key points जो मेन टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है उसके बारे में. ठीक है. चौथा है आपका थ्योरीज. क्या क्या थ्योरीज आते हैं इसमें? सबसे पहला डाल्टन्स थ्योरी. सब पढ़ेंगे, ठीक है, सब पढ़ेंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए. डाल्टन्स थ्योरी. दूसरा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. थर्ड इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द कंपाउंड्स बाय द यूज ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ठीक है. अच्छा, बिफोर लर्निंग दिस चैप्टर I would like to have some few points that you need to remember. क्या क्या है? सबसे पहला पॉइंट, let me zoom it for a while. Let me zoom it. Okay, now coming to the different points which is required. Point number one, we need to remember 20 elements with symbols and atomic number sequence. I don't know how you will remember it, but this is very 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 important. ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा important है so that you don't face any problem. Okay, the second point is remember their valencies, atomic masses and electronic configuration. सब बताऊंगा. Everything will be explained here. बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है. कैसे याद करना है ये भी मुझे बताना है, मैं आपको बताऊंगा. जब ये आप जब ये रिमेंबर 20 एलिमेंट्स जो मैंने पॉइंट लिखवाया, जब अगर आप 20 एलिमेंट्स याद कर लेंगे ना सीरियल वाइज, तो वैलेंसी, एटॉमिक मासेस एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, everything will be there with you. We just need to remember 20 elements in a sequence. ठीक है. उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको सेकेंड चीज़ याद रखनी है जिसे हम कहते हैं मोल कॉन्सेप्ट. मोल कॉन्सेप्ट में मैं आप लोगों को शॉर्टकट बता दूं. पहले
उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसको। मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि एवोगैड्रो नंबर क्या होता है। एवोगैड्रो नंबर, व्हाट एग्जैक्टली इज एवोगैड्रो नंबर? एवोगैड्रो नंबर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मोल। एक फिक्स्ड नंबर है। एवोगैड्रो नंबर एक फिक्स नंबर है जिसमें कि आपको एलिमेंट का एक मोल में कितने एटम्स होते हैं ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है। व्हाट एग्जैक्टली इज एवोगैड्रो नंबर? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है। नाउ एक मोल ऑफ H2 gas will contain how many atoms? Now, 1 mole is nothing but 1 molecular mass या फिर 1 atomic mass in grams। ये याद रखेंगे कि इसका जो रिप्रेजेंटेशन है ये ग्राम्स में है। किसमें है? ग्राम्स में। अगर पानी का हम लिखते हैं H2O is 2 into 2 plus 16, sorry 2 into 1 plus 16, that is 18U, which is the molecular mass of water. If I represent it in gram, 18 gram, that will be containing 1 mole of water. Now 1 mole of water will be containing 6.022 into 10 to the power 23 molecules of water. थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर। एक अगर एलिमेंट होगा तो उसका एटॉमिक मास होगा तो नंबर ऑफ एटम्स होगा। अगर एक कंपाउंड हुआ, कंपाउंड होने से यहां पर क्या कैलकुलेट होगा? मॉलिक्यूल्स। इज दैट क्लियर? अगर हम कंपाउंड डिस्कस करेंगे तो उसका मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट होगा। अगर हम एलिमेंट डिस्कस करेंगे तो उसका एटम्स होगा, क्योंकि कंपाउंड कैन कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स टुगेदर। दिस इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट। कंपाउंड इज नॉट मेड अप ऑफ अ सिंगल एलिमेंट, इट इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 2 और मोर। तो उस हिसाब से एक कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल विल कंटेन द एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड। अगर मैं बोलूंगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ carbon dioxide. Now carbon dioxide is a compound, right? उसका फॉर्मूला क्या है? CO2. So this CO2 is 1 molecule of carbon dioxide. What is the mass? कार्बन का है 12 ग्राम प्लस ऑक्सीजन का है 16 ग्राम इंटू 2, that is 12 plus 32, that is 44 ग्राम। 44 ग्राम का अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मैंने रखा है, that will contain 6.022 into 10 to the power 23 number of कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। मैंने ये नहीं कहा कि इसके अंदर 6.022 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ कार्बन होगा, नहीं, ये फिर मल्टीप्लाई होगा। अगर यहां पर 2 ऑक्सीजन है तो 6.022 इंटू 2 होगा। यहां पर 1 कार्बन है तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन होगा। ठीक है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। CO2 will contain 6.022 into 10 to the power 23 number of atoms. कार्बन का अपना, ऑक्सीजन का अपना।
अभी तक मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। अच्छा, while I am teaching this chapter, if you are remembering the elements, which will be eventually I will be uploading it in the notes also, but आप लोगों को जो 20 एलिमेंट याद रखने हैं वो अगर आप लोग सीरियल वाइज याद कर लिए, आई एम अश्योरिंग टिल यू आर स्टडिंग साइंस that will be helpful. Many of my students, I have told them, they have remembered up to even 30 elements. You won't believe. But the thing is, they have learned it in class 8. Because I was teaching them and I told them कि it will be helpful if you are thinking to study science in future. तो उसको फ्यूचर में दिमाग में रखते हुए क्लास 8 के बच्चे याद कर रहे हैं. And it is high time for class 9 students. Please remember the 20 elements. क्या क्या होते हैं ये भी मैं बता देता हूँ कि क्या क्या होते हैं 20 elements. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, not chlorine, it's fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminium, next comes the silicon, next comes the phosphorus, again comes the sulfur, then comes chlorine, argon, potassium, calcium. ठीक है, ये हैं आपके 20 एलिमेंट्स. अब आप बोलेंगे सर 20 एलिमेंट्स आपने बता दिए, इसको हम याद कैसे करेंगे? देखो भाई, याद आपको कैसे करना है दैट इज योर कॉल. ठीक है, आपको कैसे, मैं तो सिंपली ऐसे ही याद रखा था भाई, पूरा नाम के साथ. ठीक है, कई लोग क्या होता है सिंबल्स के साथ याद रखते हैं, कई लोग नाम के हिसाब से याद रखते हैं, है ना. तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप कैसे याद करेंगे, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सिंबल्स में लिख देता हूँ. हाइड्रोजन का सिंबल है H, हीलियम का सिंबल है He, लिथियम का है Li, बेरिलियम का है Be, बोरॉन का है B, कार्बन का है C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का है F, नियॉन का है Ne, सोडियम है Na, मैग्नीशियम का है Mg, एल्यूमिनियम का है Al, सिलिकॉन हैज़ गॉट Si, फॉस्फोरस का है P, सल्फर का है S, क्लोरीन का है Cl, आर्गन का है Ar, पोटेशियम का है K और कैल्शियम का है Ca. These are the These are the 20 elements which is needed to be remembered. अब आप मेरे को बोलेंगे कि सर ये सीक्वेंस ही क्यों, कोई दूसरा सीक्वेंस क्यों नहीं? भाई साहब, इसमें बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है. राज ये है कि ये जितने भी एलिमेंट्स मैंने लिखा, दे आर इन द ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है. एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है
number of protons which is fixed. अब आप बोलेंगे सर एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिख सकते बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल एंड दैट मेक्स द एटम न्यूट्रल. नो, electrons can leave the atom, they can go to other atom, their number can increase or decrease, making them different types of ions, so it's better to remember the atomic number on the basis of the number of protons. तो उस हिसाब से भाई साहब पहला नंबर में आता है हाइड्रोजन और 20वां नंबर में आता है कैल्शियम. उस हिसाब से आप लिस्ट बनाइए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and we have 20. Is that clear? Good. So अब आप बोलेंगे कि सर आपने बोला था कि इससे हमें वैलेंसी भी पता चलेगा. मैंने कहा था ना कि ये 20 एलिमेंट्स अगर आपने याद रख लिए, उस 20 सीरियल नंबर के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कि वैलेंसी कैसे आपको पता चलेगा. आई टोल्ड यू दिस. लेट मी शो यू. अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ नील्स बोर, जो कि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, हर एलिमेंट, हर एटम का सेंटर में होता है न्यूक्लियस. पहला शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रह सकता है? 2. दूसरा शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितना रहेगा? 8. तीसरा शेल में भी मैक्सिमम कितना रह सकता है? 8. तो भाई साहब आप अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के हिसाब से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन्हें बैठाइए, और एक्स्ट्रा जो बाहर रहा, इफ इट इज मोर देन 4, तो क्या होगा? स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मतलब करण अर्जुन आएंगे. और अगर लेस देन 4 है तो वो कहीं जाएंगे. If it is less than 4, they will lose electrons. If it is more than 4, they will gain electrons. Example, the atomic number of potassium is 19. ठीक है? I'm giving an example. The atomic number of potassium is 19. So how can I show what is the valency of potassium? जिन लोगों को रटने की यह आदत है वो लोग तो इजीली बोल देंगे कि सर पोटेशियम का वैलेंसी तो 1 है, दैट इज +1. रटने वाले बोल देंगे. लेकिन मैं जैसा स्टूडेंट था, मुझे बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि भाई साहब पोटेशियम का वैलेंसी क्या है, तो मैं रट नहीं सकता. तो मैंने रटा नहीं इस चीज़ को. हाँ, जो रटने की चीज़ थी मैंने रटी, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि वैलेंसी को रटना चाहिए. कैसे? पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19. तो पहला शेल में कितना रहेगा? 2. बचा कितना? 70. दूसरा शेल में मैक्सिमम रहेगा 8. ठीक है? फिर तीसरा में कितना रहेगा मैक्सिमम? 8. एडिशन करते रहिए. 2 + 8 10, 10 + 8 18, लास्ट में बचा 1, दैट इज 19. और मेरा रूल क्या था? मैंने कहा था अगर लेस देन 4 है तो उतने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? वो लूज करेगा. तो उसने क्या किया? 1 को किया लूज
तो उसकी वैलेंसी बन गई +1, that is K+1, which is the valency of potassium. Similarly, if I talk about potassium, तो चलो एक मेटल है, इसका प्लस होता है. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. पोटेशियम के लेवल पर रिएक्टिव एक नॉन मेटल जिसका नाम है क्लोरीन. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17. शुरुआत करते हैं. 2, दैट इज द फर्स्ट शेल. 2 हुआ, उसके बाद हुआ 8. ऑब्वियसली सेकेंड शेल भी फिलअप होगा क्योंकि ज़्यादा है. 10 से ज़्यादा है तो सेकेंड शेल भी फिलअप होगा. 8 2 10, लास्ट में बचा 7. तो मैंने आपसे क्या कहा था? इफ इट इज मोर देन 4, अगर 4 से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? गेन होगा. गेन मतलब, अच्छा कितना गेन होना चाहिए? स्टेबिलिटी फैक्टर कितना है हमारे पास? 8. 8 होने से एटम स्टेबल होता है. तो हमारे पास में है 7 इलेक्ट्रॉन, हमें चाहिए एक और इलेक्ट्रॉन. तो क्लोरीन का वैलेंसी क्या बना? -1. दैट इज Cl-1. दैट इज द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन. आई होप दैट इज क्लियर टू यू टिल नाउ. काफी इजी है. अच्छा, मैंने आपको बताया था कि भाई साहब पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लॉस, उस बेसिस में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है, ये कौन सा आयन है. आयन 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव जनरली क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं. क्यों? क्योंकि उनका आउटर मोस्ट शेल में लेस देन 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है. नेगेटिव आयंस में क्या होगा? ऑलवेज इट विल बी मोर देन 4, सो दे विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स while making ionic compounds. Example, sodium chloride. When I talk about sodium chloride is made up of 2 elements, sodium plus and chloride minus. The electron which sodium left to become stable, Na plus, is more stable than Na. Very important point for the examination point of view. अगर एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि भाई साहब ये बताइए कि सोडियम आयन और सोडियम इन दोनों में स्टेबल कौन सा है, तो आपका हमेशा जवाब होना चाहिए सोडियम आयन इज मोर स्टेबल देन सोडियम मेटल. क्यों? क्योंकि सोडियम आयन जब बनता है इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम सोडियम आयन, and when it loses electron the outermost shell contains 8 electrons. क्योंकि लास्ट का जो 1 इलेक्ट्रॉन था वो हट गया. हट जाने के बाद में सेकेंड शेल में जो बचा दैट इज 8. क्या है? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11. कन्फिगरेशन होगा 2 8 1. ये हट गया तो आउटर मोस्ट में 8 ही रहा ना. तो जब ये 8 रहा तो ये काफ़ी स्टेबल है. The atom becomes more stable when it loses electrons to form ions. Similarly, in case of negative ions, when it gains electrons, it becomes more stable. इसीलिए सोडियम और क्लोरीन एलिमेंटल लेवल पर स्टेबल नहीं है, लेकिन सोडियम क्लोराइड काफ़ी स्टेबल कंपाउंड है. अभी तक आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी, लेकिन नेक्स्ट क्लास जाने से पहले, नेक्स्ट स्टेप जाने से पहले आप लोग प्लीज़ ये 20 इलेक्ट्रॉन्स याद रखिए और इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में. जब आप लोग ये 20 इलेक्ट्रॉन्स याद रखेंगे उसके बाद हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि कैसे वैलेंसी को लेकर, कैसे एटॉमिसिटी को लेकर हम एक केमिकल फार्मूला बना सकते हैं
या ये आप ये जान पाएंगे कि भाई साहब ये सोडियम क्लोराइड कहाँ से आया, ये वाटर कहाँ से आया, ये जितने भी कंपाउंड्स आप आसपास में देख रहे हैं जिससे काफ़ी सारी सब्सटेंसेस बने हैं, ये कैसे आया। उसके पीछे भी रीज़न है। उसके पीछे रीज़न ये है, सबसे पहला रीज़न तो आप लोगों को ये दिख गया कि आयंस बनते हैं क्योंकि स्टेबल उन्हें होना है। तो जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स आप देख रहे हैं उसका रीज़न तो आपको ये पता चल गया कि भाई साहब जो जितने भी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, काफ़ी रिएक्टिव मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और गेन करते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर एक केमिकल बॉन्ड बनता है एंड द कंपाउंड इज इन फ्रंट ऑफ यू। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से उनकी गाड़ी चलती है। वो कौन होते हैं? छोटा सा हिंट देता हूं। मैंने आप लोगों को बोला if it is more than 4 it will gain electrons, if it is less than 4 it will gain electrons. I'm sorry, one more time. If it is more than 4 it will gain electrons and if it is less than 4 it will lose electron. तो भाई साहब ये बताइए कि जिनका 4 हुआ वो क्या करेंगे? जिनका 4 हुआ, एग्जाम्पल कार्बन। कार्बन का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। कैसे? कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 2 + 4। तो आउटर मोस्ट शेल में हुआ 4। अब ये बेचारा क्या करेगा? इट कैन नाइदर डोनेट नॉर एक्सेप्ट, so it will be sharing the electrons with the neighbor reactive element in order to form compound. कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो कंपाउंड है कैसे बनता है? कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने हैं? 4। सपोज दिस आर द एटम्स ऑफ जो आउटर मोस्ट शेल है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गए 4। अब उसको चाहिए कितने? 4 और तभी जाके स्टेबल होगा ना। कार्बन को चाहिए, हर एलिमेंट को कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। कार्बन के पास कितना है? 4। तो जुड़ेंगे कितने? 4। अब कार्बन डाइऑक्साइड में आप देखिए ऑक्सीजन के 2 एटम्स। ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? एटॉमिक नंबर है ऑक्सीजन का 8, तो 2 6। सही है, 2 और 6। यू कैन सी द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2 6। तो ऑक्सीजन को और कितना चाहिए? 2 चाहिए, है ना। तो क्या हुआ? यहां पर ऑक्सीजन के पास है 6, 1 2 3 4 5 6, और यहां पर भी कितना है ऑक्सीजन के पास में? 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए बराबर। कार्बन के पास में कितने हैं? भाई साहब कार्बन के पास में है 4, उनको चाहिए कितने? 4। तो ऑक्सीजन ने कार्बन के भी 2 ले लिए। ठीक है, सॉरी, ऑक्सीजन ने कार्बन के भी 2 ले लिए और इस ऑक्सीजन ने भी कार्बन के 2 ले लिए। तो कितने बन गए ऑक्सीजन के? 8 8। ठीक है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, कार्बन ने अपने चारों एटम इलेक्ट्रॉन्स दिए नहीं हैं। दे आर स्टिल विथ कार्बन, बट कार्बन हैज इन ऑर्डर गॉट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बोथ द ऑक्सीजन एटम्स। उसने एक ऑक्सीजन से 2 लिए और अपने भी 2 दिए। तो कार्बन के कितने बन गए यहाँ पर? 8
और इंडिविजुअली ऑक्सीजन के बन गए 8. सो दिस इज अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंपाउंड CO2, जिसे कहते हैं कोवैलेंसी. कोवैलेंसी मतलब को मतलब शेयरिंग एंड वैलेंसी मतलब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स. तो इन लोगों का शेयरिंग से बनता है कोवैलेंट कंपाउंड, जैसे वाटर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे अल्कोहल. कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं, सिलिकॉन के जितने भी कंपाउंड्स हैं, सिलिकॉन में भी होता है. आप देखिए सिलिकॉन में कितना नंबर ऑफ एटम्स है, इलेक्ट्रॉन्स है 14. तो 2 + 8 10, 10 + 4 14, आ गया ना 4. अब ये बेचारा अभी क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स है. दैट्स वाई यू विल फाइंड सिलिकॉन चिप्स, क्योंकि वो अपने में ही जुड़ जुड़ के चेन बनाकर सिलिकॉन का कंपाउंड होता है. कार्बन का भी सेम है सीन. कार्बन कार्बन के साथ जुड़ जुड़ के चेन कंपाउंड बनाता है. हमारा जो डीएनए है दैट इज मेड अप ऑफ कार्बन. कैसे? बिकॉज कार्बन मेक्स कोवैलेंट कंपाउंड्स विच आर वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक. आयंस आर इजी. नमक को मैंने पानी के अंदर डाल दिया, you will be able to recognize both sodium and chloride ions. ठीक है, sodium and chloride ions get separated when they are inside the salt water. लेकिन अगर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ने की कोशिश की, दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. क्योंकि भाई ये सही है, मोहब्बत भुलाना मुश्किल नहीं होता. मोहब्बत भुला सकता है इंसान, लेकिन दोस्ती नहीं तोड़ती. बिकॉज शेयरिंग इज फ्रेंडशिप, एंड व्हेन यू शेयर थिंग्स you are not able, that bond doesn't break. So the ionic bond which is created between sodium and chloride, as soon as it is submerged in water, the bond breaks and the atoms are free, and the ions are free to move. But when I mix carbon dioxide gas in water, no carbon gets separated from oxygen. I think we had too much today. So please be with me, subscribe the channel, and in order to have a quick revision, please stay in touch so that I will be able to explain all the chapters in this channel, Wiser Academy. My department is chemistry, and I assure you, if you follow the rules, if you follow my advice, if you follow the tricks, nobody can say that chemistry is difficult. No. If you learn it in the right way, I assure you, chemistry is the easiest subject you ever read in your class. With this I conclude. I will see you soon in the next class. Till then, please take good care of yourself and keep rocking, keep studying. I will see you soon. Take care. Bye-bye.